ठीक है. We were about to start our fifth chapter, that is linear equations in two variables. Okay. So before starting the chapter, we will revise few concepts from the last standard. Okay. So what are those concepts? Let us see. So solve the following equations. So these equations seems to be in a one variable. Okay. So here variable is m, here is y, in the third one it is x, and in the fourth one the variable is p. Correct. So what is the answer for the first one? If m plus 3 is equals to 5, then m should be equal to 2. Correct. हा, बाकी लोग पण आन्सर द्या. बाकीच्यांनी पण आन्सर द्यायचे. ओके. चलो ठीक है. Okay, now consider 3y plus 8 is equals to 22. Then what is the value of y? What is the value of y? Okay, Maitreya says it is 14 divided by 3. And Dheeraj says it is 22. No, Dheeraj, it is not 22. It should be 14 divided by 3. How? See. हा 8 इकडे गेला. किती झाले इथे? 22 minus 8, that becomes 14, and this 3 is in multiplication with y, so it goes to this side, that becomes 14 divided by 3. Okay, so the 14 divided by 3 is the correct answer. सगळ्यांना समजतंय? Okay, 14 divided by 3. Now what is the value of x here? 6. Very good. So this 3 goes here, it's in the division here, and if it goes this side, then it gets multiplied with 2, and 2 multiplied by 3 becomes 6. So x is equals to 6. Correct. Now what is the value of p here? What is the value of p? Very simple. Try it. What is the value of p? See how you can do. See, 2p is here, p is here. So if this p comes here, 2p minus p becomes p, and p is equals to what? 4 by 9. Got it or not? 4 by 9, not 4.5. 4 by 9. 4 by 9. Okay. Chalo, ठीक है. So which number should be added to 5 to obtain 14? It is very easy. 9 should be added. Correct. So which number should be subtracted from 8 to obtain 2? So I think it should be 6. Okay. Chala. So in all above equations, degree of the variable is 1. There is, sorry, these are called linear equations. Okay, so degree काय आहे या प्रत्येक इक्वेशन मध्ये 1 आहे, म्हणून त्यांना काय बोलतो आपण? We call them as a linear equations. Okay, so now let us see linear equations in two variables. आता आपल्याला जे इक्वेशन्स बघायचे ते लिनियरच आहेत. दे आर लिनियर इक्वेशन्स, बट नाउ दे आर इन द टू व्हेरिएबल्स. ओके, सो याच्या अगोदर किती व्हेरिएबल मध्ये होते? फक्त एक व्हेरिएबल मध्ये होते. लेट अस सी. फाइंड टू नंबर्स whose sum is 14. सो आता आपल्याला दोन्हीही नंबर फाइंड आउट करायचे ज्यांची की सम किती असली पाहिजे? 14 असली पाहिजे. युजिंग व्हेरिएबल x and y for the two numbers, we can form the equation x plus y is equals to 14. Okay, म्हणजे आपण अशा प्रकारचं एक इक्वेशन बनवू शकतो. We can make the equation like this: x plus y is equals to 14. Here value of x can be anything, and depending on the value of x, the value of y also change. For example, if let us suppose value of x is 7, so the value of y should be 7 only. Okay, so that it becomes 14. So value of x is 7, value of y is 7, so that's why the result is 14. Okay, so this is an equation in two variables. यहाँ पे दो अल्फाबेट्स दिए गए हैं, x and y, और वेरिएबल्स दिए गए. सो दीज आर इक्वेशंस इन two variables. Okay, so we can find many values of x and y satisfying the condition. Now आपल्याला काय विचारलंय? What they have asked us? They have asked us to find
two numbers, find any two numbers whose sum is 14. Okay, so 9 plus 5 is also 14, isn't it? 9 plus 5 is 14, 7 plus 7 is 14, 8 plus 6 is 14, 4 plus 10 is also 14, and there are numerous number of pairs. मतलब बहुत सारे pairs है, देखिए यहाँ पे minus 100 plus 114 also becomes 14. So hence above equations has many solutions like this: x is equals to 9, y is equals to 5, x is equals to 7, y is equals to 7, x is equals to 8, y is equals to 6, and etc. There are numerous number of solutions. Okay, so conventionally the solution x is equals to 9, y is equals to 5 is written as an ordered pair like 9 comma 5 in bracket. Okay, so where 9 is the value of x and 5 is the value of y. To satisfy equation x plus y is equals to 14, we get infinite ordered pairs like 9 comma 5, 7 comma 7, 6 comma 8, or 8 comma 6, 4 comma 10, 10 comma 4, minus 1 comma 15, and so on, and so on. Okay, so all of these are the solution of x plus y is equals to 14. Now consider the second example. Find two numbers such that their difference is 2. Okay, their difference is 2. Let the greater number be x and the smaller number be y, and then we get the equation x minus y is equals to 2. अभी क्या करना है, हमें कोई भी दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनकी की सब्ट्रैक्शन 2 आएगी, और इन्होंने हमें क्या बताया है कि x लेट द ग्रेटर नंबर बी x, मतलब x को क्या रहने दीजिए, ग्रेटर नंबर रहने दीजिए, और y को स्मॉलर नंबर रहने दीजिए. सो इससे क्या होगा कि ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे. ठीक है, सो इसी तरह से जब हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो हमें बहुत सारे पेयर्स मिलेंगे. लाइक सी 10 minus 8 becomes 2, 9 minus 7 becomes 2, 8 minus 6 becomes 2. There are lot of pairs. Okay, there are a lot of such pairs. So here if we take values x is equals to 10 and y is equals to 8, then the ordered pair 10 comma 8 satisfies above equation. Here we cannot write as 8 comma 10. Okay, we cannot write 8 comma 10 because 8 comma 10 will imply x is equals to 8 and y is equals to 10, and it does not satisfy the equation x minus y because the value of this equation is going to be minus 2. Therefore note that the order of numbers in the pair indicating solution is very important. See, हम 10 8 को 8 10 नहीं लिख सकते. Why? Because that may change the result. Okay, so the order is very important. Now let us write the solution of x comma y is equals to 2 in form of ordered pairs. So these are few pairs for this equation. There are infinite solutions. Find the solution of 4m minus 3n is equals to 2. अभी हमें एक और इक्वेशन दिया गया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसका कि हमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, नाउ कंस्ट्रक्ट 3 डिफरेंट इक्वेशंस and find their solution. Now observe the first two equation. Let us see first equation. हमारा first equation क्या था? x plus y is equals to 14 था, x minus y is equals to 2 था. इससे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, क्या हो सकती है वैल्यूज, बताइए मुझे, ट्राई कीजिए. व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ m and n? ट्राई कीजिए. m और n की क्या वैल्यूज हो सकती है जिसके लिए कि इक्वेशन ट्रू साबित हो. If we put m is equals to 2 and n is equals to 2, so what happens? Yes, m is equals to 2, n is equals to 2 is the solution. ऐसे ही हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हम अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो. ठीक है, तो चलिए इन दो इक्वेशंस पे लौट आते हैं. x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 2 है. सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है? बहुत सारे इक्वेशन सॉल्यूशंस थे हमारे पास, और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 भी हमारे पास बहुत सारे आए. 8, 6
is the only common solution of both the equation. This solution satisfies both equations, hence it is the unique solution of the both the equations. मतलब देखिए यहाँ पे 6,8 इसमें भी है और 6,8 इसमें भी है. That means this is the only common solution between these two equations. Okay, so this is unique solution for both of these equations. मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस किस तरह से डिपेंड करते हैं. मैंने आपको बताया था या फिर नहीं, लास्ट क्लास में या फिर उससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था या नहीं, आपको याद है? ठीक है, मतलब अगर दो वेरिएबल है और हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हमें कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए? दो इक्वेशंस चाहिए. दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशंस. अगर तीन वेरिएबल है तो कितने इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी? तीन वेरिएबल की. करेक्ट. चलिए ठीक है, मतलब आपको याद है. Now, when we consider at the same time two linear equations in two variables, these equations are called simultaneous equation. अभी हम इन दो इक्वेशन की अगर है एक साथ बात कर रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? Simultaneous equations कहेंगे. Okay. Now, on the glass of the following spectacles, write numbers such that their sum is 42 and difference is 14. तो इन्होंने हमें दिया है कि सम कितना है? 42 होना चाहिए और डिफरेंस होना चाहिए 16. So 29 and 13 is the perfect pair. 29 plus 13 becomes 42 and 29 minus 13 becomes 16. Okay. Now for the second one, their sum is 37 and difference is 11. Try to find out what is the pair. What pair can be there? Sum is 37 and difference is 11. ट्राई कीजिए. देखिए ये पेयर सेटिस्फाई करेगी. Will this pair satisfy the equation? 24 plus 13 कितना होता है? 37. 24 minus 13 कितना होता है? 11. ठीक है, सो अभी इसका फाइंड आउट कीजिए आप. Their sum is 54 and difference is 20. Sum is 54 and difference is 20. ट्राई करो, चलो. कर रहे हो ना ट्राई? आपको क्या करना है देख लीजिए. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत हो रही है तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? नो 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 मैत्रेसी, 34 plus 20 becomes 54, but 34 minus 20 does not become 20. Correct. The difference should be 20 ना. Your difference is coming 14. See, x plus y is equals to कितना है? 54 है. बराबर. और x minus y कितना है? x minus y कितना है? x minus y is 20. 54 minus 34 क्यों कर रहे हो आप लोग? ठीक है, तो चलो अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. इन दोनों को अगर एडिशन करेंगे हम तो x का y कट जाएगा, y कट जाएगा, ये बचेगा 2x. बराबर. और ये यहाँ पे कितना होगा? 74 होगा. मैत्रेया ने करेक्ट फाइंड आउट कर लिया है 74. सो x बिकम्स 37. ओके, x becomes 37 and then y will become 17. ट्राई कीजिए. 17 प्लस 37 बनेगा 54 और उनका अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो बन जाएगा 20. हो गया?
चलिए अभी आपको यहाँ पे कोई भी एक पेयर लिखनी है, ये क्वेश्चन भी आपको ही बनाना है और सॉल्व भी आपको ही करना है। तो मान लीजिए कि मैं आपको एक पेयर दे देता हूं, ट्राई कीजिए। देयर सम इज 42 एंड डिफरेंस इज 2। विच इज दैट पेयर? सब लोग ट्राई करो, सब लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं मुझे। अनुज, द्विजेश, आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? मेरी आवाज तो आ रही है ना? अरे ट्राई करो। सम इज 42 एंड सम इज 42 एंड डिफरेंस इज 2। कितना कितना इजी है। या दिस इज द पेयर। बराबर। चलो ठीक है। नाउ सी, x plus y is equals to 5 and 2x plus 2y is equals to 10 are two equations in two variables. Find five different solutions of x plus y is equals to 5. Verify whether same solution satisfy the equation 2x plus 2y is equals to 10 also. Observe both equations. Find the condition where two equations in two variables have all solution in common. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है ना, उस इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो सेम यही इक्वेशन है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। हमको डिफरेंट दिख रहा है लेकिन वो डिफरेंट है नहीं, वो सेम ही इक्वेशन है। तो अभी आप कहेंगे कि सर हमारे पास टू वेरिएबल है और टू इक्वेशन भी है, तो क्या इसका यूनिक सोल्यूशन हमें मिलेगा? कैन वी फाइंड द यूनिक सोल्यूशन फॉर दिस equation, these two equations? Yes or no? Can we find the unique solution for these two equation? Can we find the unique values of x and y? 3 and 2, चलो आप 3 और 2 कहते हो, मैं 4 और 1 कहता हूं। I say x is equals to 4 and y is equals to 1. Isn't it true? It is true for both the equations. Okay, मतलब कि इनका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ के लीजिए मैं जो कह रहा हूं आपको, ये जो इक्वेशन दोनों इक्वेशन से वो सेम ही है, सिर्फ क्या किया गया है, इस इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो एक बात आपको समझ में लेनी है कि अगर किसी भी इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए या फिर डिवाइड किया जाए, थ्रू आउट बोल रहा हूं मैं, थ्रू आउट डिवाइड किया जाए मतलब सारे टर्म्स को डिवाइड किया जाए या फिर सारे टर्म्स को किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो नया इक्वेशन बनता है वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। समझ में आया? अब अभी मैं अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू को 3x प्लस 3y लिख दूं, तो यहाँ पे मुझे अगर मैंने 15 लिख दिया तो ये तीनों इक्वेशन सेम ही है, ये इक्वेशन भी, ये इक्वेशन भी और ये इक्वेशन भी। समझ में आया? तो इन जैसे इक्वेशन के लिए हम यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम कब यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं? जब हमारे दो दिए हुए इक्वेशन डिफरेंट इक्वेशन है, मतलब वो सेम इक्वेशंस नहीं हो सकते। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे मुझे 15 की जगह पे 10 दिया गया है, ओके, सो देन दीज आर टू डिफरेंट इक्वेशंस। ओके, ये इक्वेशन अलग है इन दो इक्वेशन से। समझ में आया? सो अभी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं यूनिक सॉल्यूशंस, लेकिन अगर यहाँ पे 15 रहता है तो मेरा ये इक्वेशन इन दो इक्वेशन के बराबर या फिर सेम ही रहेगा। ठीक है, सो आई वोंट बी एबल टू फाइंड आउट द यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया? यस और नो, क्विकली।
बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या? जिसको डाउट है वो लिखो ना चैट बॉक्स में। अगर आप ऐसे चुपचाप बैठोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा? जैसे धीरज ने रिस्पांस दिया, बाकी सब लोग रिस्पांस दो, डाउट है नहीं है, समझ में आया नहीं आया। ओके चलो, चलो गुड। सो नाउ elimination method of solving simultaneous equations. Now the first method that we use to solve the simultaneous equations, that is elimination method. Okay, so what is that? Let us see. By taking different values of variables, we have solved the equation x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 2. But every time it is not easy to solve by this method. Example, 2x plus 3y is equals to 4 minus 4 and x minus 5y is equals to 11. Try to solve those equations by taking different values of x and y. By this method, observe that it is not easy to obtain the solution. मतलब हमने x plus y is equals to 14 को कैसे सॉल्व किया था? हमने एज्यूम किया था कि x की वैल्यू अगर 7 है तो y की वैल्यू 7 रहेगी, x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 6 रहेगी। मतलब हमने एज्यूम करके इन दो इक्वेशन की सॉल्यूशन तो आसानी से फाइंड आउट कर लिए। इन दो इक्वेशन में कॉमन सॉल्यूशन जो था ना 8,6 वाला, वो हमको आसानी से मिल गया। लेकिन इट इज नॉट द केस विथ एवरी इक्वेशन और एवरी सेट ऑफ इक्वेशन। तो हमें कोई एक मेथड चाहिए जिससे कि हम इन इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सके, ठीक है। इस तरह से एज्यूम करके हम सारे इक्वेशंस इजीली फाइंड आउट या फिर सॉल्व नहीं कर सकते, कर पाएंगे लेकिन बहुत ही लंबी प्रोसीजर हो जाएगी, ठीक है। सो therefore to solve simultaneous equations we use different method. In this method we eliminate one of the variables to obtain equations in one variable. We can solve and find the value of one of two variables, and then substituting this value in one of the given equations we can find the value of the other variable. Now क्या बताया इन्होंने इस पैराग्राफ में कि हमें जो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हैं, बोथ इक्वेशंस आर डिफरेंट। साइमल्टेनियस इक्वेशन में बोल रहा हूं इसका मतलब ये है कि वो दोनों इक्वेशंस अलग अलग है, ठीक है। तो अगर वो हमें दिए गए हैं तो अब अगर हमको उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में हमें इक्वेशन दिया रहेगा तो हम दोनों भी इक्वेशन में से या तो एक्स को या फिर वाई को इलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं या फिर उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर बचेगा क्या, इक्वेशन विल बी इन वन वेरिएबल एंड वी कैन इजीली सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो उस वेरिएबल की पर्टिकुलरली वैल्यू आ जाएगी, मान लीजिए एक्स की वैल्यू आई या फिर टू की वाई की वैल्यू आई, तो उसको हम रिप्लेस या फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे in any of the equation and we will get the value of another variable as well. Okay, now let us study one example. See, solve x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 2 with the help of elimination method. तो इसमें क्या करना है हमें, देखिए elimination method में हमें थोड़ा सा हमारे ओर से भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि हम किसी एक वेरिएबल को किस तरह से इलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस वाई है और यहाँ पे x माइनस वाई है, तो अगर हम इन दो इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो ये प्लस वाई और ये माइनस वाई इलिमिनेट हो जाएगा या फिर कट हो जाएगा, ठीक है। सो क्या बचेगा, क्या x बचेगा। तो ये हमें समझ में आना चाहिए देखते ही, ठीक है। सो इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे। सो ये y और ये y चला गया, x प्लस एक्स बना 2x और 14 प्लस 2 बना 16। सो 2x इज इक्वल टू 16 है तो x इज इक्वल टू 8 बन जाएगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है तो x की वैल्यू क्या है, 8 है, तो y की वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी। x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। x की वैल्यू क्या आई थी, 8 आई थी, 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, बराबर। तो ये 8 अगर इधर चला जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 8 दैट बिकम्स माइनस 6। सो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6 है तो y क्या बनेगा, y बनेगा 6। मतलब किसी भी इक्वेशन में रख के हम वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। हमें सिर्फ कोई मैथमेटिकल एरर नहीं करना है, मतलब प्लस की जगह पे माइनस ले लिया फिर माइनस की जगह पे कुछ और ले लिया, ऐसा नहीं करना है। सो दैट आवर इक्वेशन विल और आवर सॉल्यूशन विल बी same and correct all the time. Okay, here 8,6 is the solution of first equation. Let us check whether it is satisfies the second equation also. Yes, it will obviously satisfy the second equation because we have found out this solution with the help of two equations. दोनों equations की मदद से हमने find out किया है ना, so वो दोनों equation के लिए काम करेगा।
So 8,6 is the solution for both the equation. Hence 8,6 is the solution of simultaneous equation x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 2. Okay, now let us see another example. Sum of ages of mother, sum of the ages of mother and son is 45 years. Sum देखिए, sum of age of mother and son is 45 years. If son's age is subtracted from twice of mother's age, then we get answer 54. Find the ages of the mother and son. तो इसको हम बिना देखे ट्राई करते हैं कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. देखिए, सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड सन इज 45. मान लीजिए मदर का एज है x ईयर्स और सन का एज है y ईयर्स, तो उनकी सम क्या बन जाएगी बताइए? 45 ईयर्स. ठीक है, मैंने फोर थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, तो मैं थोड़ा सा कट करके फिर से लिखता हूँ. 45 ईयर्स. अभी अच्छे से पढ़िए. इफ सन्स एज, सन्स का एज क्या है? y है. इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ मदर्स एज, मदर्स एज क्या है? x है. ट्वाइस ऑफ मदर्स एज क्या बनेगा? 2x बनेगा. और इसमें से हमें क्या करना है? सन का एज सब्ट्रैक्ट करना है. देन वी गेट द आंसर 54. Okay, now find the एजेस ऑफ सन, मदर एंड सन. तो हमें क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा? मदर और सन का एज मिल जाएगा. सो इस यहाँ पे हम कोई भी एक वेरिएबल किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं? देखिए, पहले पहले इक्वेशन में प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा. ठीक है, सो ये x प्लस 2x क्या बनेगा? 3x बन जाएगा, बराबर. और 45 प्लस 54 करेंगे तो कितना बनेगा? 99. करेक्ट. सो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई 33, बराबर ना. और हमको क्या पता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 है, मतलब 33 प्लस y इज इक्वल टू 45 है. तो y कितना आएगा? y की वैल्यू आएगी 12. करेक्ट. सो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमने ये बिना देखे सॉल्व किया है. देखते हैं हमारा करेक्ट आया है फिर गलत आया. मान लीजिए एक्स मदर का एज कितना है? 33 है, और सन का एज कितना है? 12 है. ओके, सो लेट अस सी. देखिए, मदर का एज आया 33 इनका भी, और सन का एज आया 12. ओके, चलो. सो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन टू वेरिएबल्स इज ax plus by plus c, where a, b, c are real numbers and x plus x and a and y are non-zero at the same time. Now see, जनरल फॉर्म किस तरह का होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. इसमें क्या है? ए बी सी रियल नंबर्स है, नंबर्स है वो. ठीक है, एंड ए एंड बी शुड नॉट बी जीरो. ए भी जीरो नहीं होना चाहिए, बी भी जीरो होना नहीं चाहिए. दोनों में से भी एक अगर जीरो हो जाएगा तो वो जो इक्वेशन है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, और जो कि हमें नहीं चाहिए. वी आर स्टडिंग वेरिएबल्स इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. करेक्ट. So in this equation, the index of the both the variables is 1, hence it is a linear equation. यहाँ पे भी इंडेक्स कितना है? 1 ही है, मतलब जो पावर कहते हैं ना हम उसको, ऑर्डर, तो वो 1 ही है. इसके लिए ये भी लीनियर इक्वेशन ही है. Now solve the following equations. 3x plus y is equals to y, sorry, 3x plus y is equals to 5, and 3x plus 2x plus 3y is equals to 1. So what we have to do? We have to eliminate either y or x. How we can eliminate? See, यहाँ पे तो easily eliminate होने वाला नहीं है. ठीक है, so हम क्या कर सकते हैं कि देख लीजिए, अगर मैं ऊपर के इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3y आएगा, 3y आएगा. बाकी सब चेंज होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं. पहले मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूं. 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 9x बन जाएगा, बराबर. और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो कितना बनेगा? 3y बन जाएगा, बराबर. और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा?
15 बनेगा। यहां तक समझ समझ में आया सबको? चलिए चलिए ठीक है। सो ये जो नीचे का इक्वेशन है वो एज इट इज रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही रखने दीजिए उसको। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? 2। बराबर? नहीं, 1 है, 1। मैंने उसको एज इट इज रख दिया। अब क्या करना है? अब इनकी सब्ट्रैक्शन करना है। क्यों सब्ट्रैक्शन करना है? बिकॉज 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 9 + 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। हमें तो एक इलिमिनेट करना है। हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, हमें सिर्फ एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए क्या होता है? साइन चेंज होते हैं। ये प्लस की जगह माइनस हुआ, ये प्लस की जगह माइनस हुआ, ये भी माइनस माइनस हुआ। सो अभी 3y और 3y क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। बराबर? सो 9x - 2x कितना बचा? बचा 7x बचा। और यहाँ इस साइड कितना बचा? 15 - 1 इधर बचा 14। सो x की वैल्यू क्या आई? सॉरी, x की वैल्यू 7 आएगी, 2 नहीं। नहीं, 2 आएगी ना, 7 नहीं, 2 आएगी। 2 आएगी, 7 नहीं आएगी। सो x की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू किसी भी एक वेरिएबल में रख, इक्वेशन में रख दो। यहाँ पे मान लीजिए मैं रख देता हूँ 2 और 2 कितना बनेगा? 4। और 4 अगर इधर चला जाएगा तो बनेगा -3। तो y कितना आएगा? y कितना आएगा? y will be -1. y will be -1. Okay, see, y is -1 and x is 2। हमारे दोनों भी आंसर्स करेक्ट आए हैं। समझ में आया सबको y किस तरह से बनाया या फिर नहीं? ठीक है, वेरी गुड। चलो, सो ओके, नाउ दिस इज अ वन solved example. You will solve this example at home. Okay, now use your brain power. Let us see what is this. 3x minus 4y minus 15 is equals to 0, and y plus x plus 2 is equals to 0. Can these equations be solved by eliminating x? Is this the solutions? Is the solution same? मतलब क्या बोल रहे हैं वो कि हम इस इक्वेशन को x को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं क्या? कैन दिस इक्वेशंस सॉल्व बाय एलिमिनेटिंग x? लेट अस ट्राई। ओके, x को एलिमिनेट करना है हमें, तो क्या क्या कर सकते हैं हम? मैं यहाँ पे दूसरी जगह पे ब्लैक बोर्ड पे ये इक्वेशन लिख लेता हूँ। ओके, व्हाइट बोर्ड पे, सॉरी। सो व्हाट आर द इक्वेशंस? 3x minus 4y, आपको दिख नहीं रहा है मुझे पता है, -15 इज इक्वल्स टू कितना आया? 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है? x प्लस y प्लस कितना है? 2 इज इक्वल्स टू कितना हुआ? 0 ही है ना? ठीक है, सो अभी दिखाई देगा आपको, दिख रहा है? तो ये मैंने दो इक्वेशन लिख ली है। सो हमें क्या करना है? एक्स को एलिमिनेट करना है। एक्स को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x 3y हो गया। यहाँ पे 6 की जगह 2 की जगह पे क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। ओके, साइन चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो 3x और 3x कैंसल, -4y - 3y कितना बनेगा? -7y। 0 will become 3. This 0 will not become 3 because 0 multiplied by 3 is 3 na? Yes, 0 multiplied by 3 is 3. 0 will not become 3. Okay, so -15 - 16 कितना हुआ? -21 बराबर इज इक्वल्स टू 0 ही रहा। सो -7y इज इक्वल्स टू कितना हुआ? 21। सो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा? -3 आएगा। y इज इक्वल्स टू कितना आया? -3 आया। तो अभी इस इक्वेशन में हम पुट करके देखते हैं।
y इज इक्वल्स टू -3 अगर हम पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। x इज इक्वल्स टू 1 आएगा, मतलब y की वैल्यू आई -3 एंड x की वैल्यू आई 1। ओके, ट्राई कीजिए आप घर पे, x की वैल्यू 1 ही आएगी। सो इस यहाँ पे अगर इसको हम पुट करेंगे, सो -3x x की वैल्यू क्या है, 1 है, सो 3x बिकम्स 3, -4 -3 दैट इज +12 और -15 एज इट इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये इक्वेशन सॉल्व हो सकता है बाय एलिमिनेटिंग x, ठीक है, सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे ये आपकी ब्रेन पावर क्या टेस्ट कर रहे थे कि इन्होंने सिर्फ क्या किया है, x और y की ऑर्डर चेंज कर दी है। देखो यहाँ पे x होना चाहिए तो यहाँ पे y लिख दिया और y की जगह पे x लिख दिया, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि आपको अगर ऐसा दिया गया है -y + x इज इक्वल्स टू 5, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं x - y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, नाउ नेक्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेट अस सी। हम डायरेक्टली एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, ये पहला एग्जांपल ले लेते हैं, सॉल्व दिस टू इक्वेशंस विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया, सेकंड इक्वेशन लिख लिया। इन द सेकंड इक्वेशन इट इज इजी टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे क्या है, y को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इजी है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम सेकंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, सो इस y को भेज दो यहाँ पे और 2 को भेज दो यहाँ पे। सो y की वैल्यू क्या बनी, y की वैल्यू बनी 3x - 2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, y की वैल्यू क्या बनी 3x - 2। सो इसी इसी y की वैल्यू को, जो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की है, देखिए अभी y की वैल्यू हमने कौन से इक्वेशन से फाइंड आउट की है, सेकेंड इक्वेशन से फाइंड आउट की है, तो हमें y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इन इक्वेशन 1। अगर हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 से फाइंड आउट करते तो हम पुट करते इक्वेशन 2 में। तो अभी हमने मान लीजिए कि सेकेंड इक्वेशन की मदद से y की वैल्यू एज्यूम कर ली है, तो इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 3x - 2 इन इक्वेशन 1। सो यहाँ पे देखिए y की जगह पे 3x - 2 लिख दिया, सो 8x एज इट इज, 3x माइनस 3 multiplied by 3x becomes 9x and 3 multiplied by -2 becomes -6 and 11 is as it is. Okay, so 8x plus 9x is 17x minus 6x minus 6 as it is, and that is equals to 11. So 17x is equals to 11 plus 6 is equals to 17, that means x is equals to 1. So हमने क्या किया, सिर्फ y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में ये जो हमारा इक्वेशन बना, ये बना एक ही वेरिएबल में, वन सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बना, तो इसको हमने इजीली सॉल्व कर लिया और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3x + 2। एक बार आपको x की या फिर y की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट आपको मिल गई, आपने फाइंड आउट कर ली, तो आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब एक में ही करना है, दो में ही करना है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 में पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो 3 multiplied by 1 minus 2, y also becomes 1। ओके, सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं और एक एग्जांपल लूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। सो x की वैल्यू क्या है, 1 है, और y की वैल्यू भी 1 है। सो 1, 1 is the solution of the given equations. Now look at these examples, these two problems or these two equations. Okay, I'll just zoom on to them. Okay, see now हमको क्या करना है, एक तो x की या फिर y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर व्हाट, फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो आप क्या कीजिए, दो इक्वेशन लिखने हैं और इसको एक देना है, दूसरे को दो देना है, ठीक है, एक और दो यहाँ पे लिखना ही है। क्यों, क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि हम किसकी मदद से वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं और कौन से इक्वेशन में हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो राइटिंग x इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1, हम आप यहाँ पे y भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। सो ये 4y इधर चला जाएगा, सो 3x इज इक्वल टू 16 प्लस 4y हो जाएगा, और ये जो 3 है ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू ये वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ y। सो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी इक्वेशन 1 की मदद से, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या था हमारा, दिस इज आवर इक्वेशन 2। ओके, सो 2x
माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो x की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट अप कर दी। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 becomes 32 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 4y becomes 8y डिवाइड बाय 3 एज इट इज। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है ये शायद आपको आता होगा। ओके, सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। नो, अगर 2 की वैल्यू हमें y की वैल्यू हमें मिल गई तो y की हम वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। So 3x minus 4y is equals to 16. 3x minus 4 multiplied by 2. Y की वैल्यू 2 रख दी। Okay. So this becomes 3x minus 8 is equals to 16 and 3x is equals to 16 plus 8 that is 24 and 3x is equals to 24 that means x is equals to 8 and x is equals to 8 and y is equals to 2. So these are the or this is the solution for these two simultaneous equation 8 comma 2। ओके, चलो तो अभी हम प्रैक्टिस सेट में जाएंगे। अभी मैं बहुत बोल चुका, अब मैं आपसे आंसर्स लूंगा। ओके, बाय यूजिंग वेरिएबल्स x एंड y फॉर्म एनी 5 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो पटापट अभी आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस लिखने हैं इन 2 वेरिएबल्स विद द यूज ऑफ x एंड y। कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हैं, 5 इक्वेशंस लिखने हैं, फटाफट जल्दी जल्दी लिखिए। चलिए लिखिए चैट बॉक्स में, मैं एक लिख देता हूं। चलो देखो, मैंने एक लिख दिया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 55। ये मेरा एक इक्वेशन हो गया। उसके बाद में मैं लिख सकता हूं 2x प्लस और प्लस क्यों माइनस कर देता हूं, माइनस 5y इज इक्वल्स टू 99। ये 2 इक्वेशन हो गए मेरे। सो इस तरह से आपको 5 इक्वेशंस लिखने हैं इन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। लिखिए, हर एक स्टूडेंट अगर एक इक्वेशन लिखेगा तो 5 तो आराम से हो जाएंगे, कोई भी इक्वेशन चलेगा। 5x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 33, नो प्रॉब्लम, करेक्ट। चलिए बाकी लोग ट्राई कीजिए। द्विजेश, वेरी गुड। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, गुड। चलिए लिखिए, अभी सेकंड क्वेश्चन देख लेते, चलिए अपन we will see the second question। x plus, okay Dvijesh, 2x plus 2y। now focus on the second question। x plus y is equals to 7 है, तो इसके हमें कोई भी 5 सॉल्यूशंस लिखने हैं। वेरी गुड मैत्रेय, ठीक है। x plus y is equals to 222, x minus y is equals to 200, 3x plus y is equals to 622 एंड ओके द्विजेश, तुम्हें अगर सॉल्यूशन लिखना है तो किस तरह से सॉल्यूशन लिखना है? सॉल्यूशन लिखने की मेथड समझ लो, 5 कॉमा 2, वो भी ब्रैकेट में, इस तरह से आपका सॉल्यूशन आना चाहिए। ओके, यू हैव टू गिव सॉल्यूशन इन दिस फॉर्मेट। 5,2 एक सॉल्यूशन मिल गया, बाकी सॉल्यूशंस दीजिए मुझे। मैं और एक सॉल्यूशन लिख देता हूं यहाँ पे, 8 माइनस 1, एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू -1 है मेरे। सो 1,6, गुड, 1,6 इज ऑल्सो ओके, 3,4 इज ऑल्सो ओके। चलिए चलिए जल्दी लिखिए, मेन क्वेश्चन तो अभी हमें सॉल्व करने हैं। ओके, 5,225, 3,4, 1,643 करेक्ट, -2 9 करेक्ट, 10 -3 उनके बीच में कॉमा दो जाए, 10 और -3 के बीच में कॉमा देना है। 14 8 नहीं होगा, 14 8 सोल्यूशन कैसे होगा, 14 7 हो जाएगा। ऋषि, बाकी लोग देखो किस तरह से आंसर दे रहे हैं। अभी धीरज ने किस तरह से दिया देखो, 4,3, इसी तरह से इसी फॉर्मेट में आपको आंसर देना है। जय ने भी गलत तरीके से आंसर दिया, विजेश ने भी लास्ट आंसर गलत दिया, ऋषि ने भी लास्ट आंसर गलत दिया। इस फॉर्मेट में देना है आपको, जिस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा है। प्रैक्टिस करो इसकी। 99 कॉमा -92, ये भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा, बराबर कि नहीं?
इस तरह से लिखना है। ओके, चलिए, तो हर एक स्टूडेंट एक एक सॉल्यूशन लिखेगा, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, सबने प्रॉपर फॉर्मेट में एक सॉल्यूशन लिख लेना है, बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, ऋषि से आ गया, माइनस सॉरी 12 - 5। चलिए बाकी लोग। ओके द्विजेश, why are you using that square bracket? use the normal common bracket. ओके, चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रैकेट का इतना इश्यू नहीं है। ठीक है, चलो, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सो फाइंड द solve the following set of simultaneous equations: x plus y is equals to 4, 2x minus 5y is equals to 1। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सो यहाँ पे अगर हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखिए, हमें कोई ना कोई वेरिएबल को इलिमिनेट करना पड़ेगा। सो किस वेरिएबल को इलिमिनेट कर सकते हैं हम? किस किस वेरिएबल को हम इलिमिनेट कर सकते हैं? ऑब्जर्व कीजिए इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। y एलिमिनेट किया जा सकता है, किस तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है? बाय मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन विथ 5। ठीक है, सो मतलब पहले इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। देखो, सो मैंने पहले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 5x प्लस 5y, दैट बिकम्स 20। 4 4 5 are 20, isn't it? Now, okay, you got the answer, x is equals to 3। Let us see। वेरी गुड, अगर सॉल्व किया है तो अच्छी बात है। 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू कितना है? 1 है। सो 5y और 5y क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2x प्लस 5x कितना बनेगा? 7x। और ये कितना हो जाएगा? 21। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 3 आया। अभी x इज इक्वल्स टू 3 आया तो y की वैल्यू भी निकालो। x इज इक्वल्स टू 3 आया है, y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू 1 है। वेरी गुड, चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नाउ देखिए, जय ने किस तरह से एकदम प्रॉपरली आंसर दिया। सब लोग देखो, मतलब आपको इस तरह से आंसर देने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक नंबर का आंसर क्या है? x इज इक्वल्स टू 3 है, y इज इक्वल्स टू 1 है। इसी प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। नाउ ट्राई द सेकेंड वन। ट्राई द सेकेंड वन। सेकेंड वन तो बहुत इजी है। क्या करना है? सिर्फ दोनों को ऐड करना है। वाई वाई तो ऐसे ही कट जाएगा। देखो, ये वाई कट गया, ये वाई कट गया। 5 + 5 बन जाएगा 10, और ये बन जाएगा। ओके, एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा मेरे हिसाब से। आप लोग देख लीजिए, एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा, और वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। है कि नहीं? आ रहा है सबका? ओके, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1। वेरी गुड फॉर द सेकेंड वन। ओके, तो इसमें से मैं और एक एग्जांपल लूंगा और हम बस करेंगे आज के लिए। कौन सा लेना है बताइए? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, विच वन शुड आई टेक? द लास्ट एग्जांपल, सिक्स्थ वन। ओके, चलो देखो। ओके गुड, सिक्स्थ वन, नो प्रॉब्लम। 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? y को अगर इलिमिनेट करना है तो y इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। सो 7 3 जार 21x, बराबर, और 7y 22 multiplied by 7, 22 multiplied by 7 becomes 154। okay, it is 154। ट्राई कीजिए, इस 22 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। नाउ 2x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 7,
देख लीजिए, मैंने पहला इक्वेशन जो है वो बाद में लिखा और दूसरा इक्वेशन पहले लिखा। ये अगर ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 7 7 कैंसल, 21x + 2x कितना हुआ? 23x। ओके, 23x = कितना बनेगा? 147। Oh yeah, sorry. It is 161. It is not subtraction, na? Correct. You are correct. My mistake. 161. Okay. Now subtract 20. Sorry, divide 161 by 23. 161 divided by 23 becomes 7. Okay. So x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई 7। x की वैल्यू 7 है, तो 7 3 = 21 यहाँ पे देखो, और y क्या रहेगा फिर? y = 1 आएगा। ओके, x = 7, y = 1। गुड। चलो, तो इस तरह से है आपका प्रैक्टिस सेट। आपका जो होमवर्क रहेगा दैट इज प्रैक्टिस सेट 5.1। ओके, योर होमवर्क विल बी प्रैक्टिस सेट 5.1 एंड योर चैप्टर विल बी ओवर इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज इट इज क्वाइट शॉर्ट चैप्टर, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, सो अगले लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। होमवर्क कीजिए अच्छे से। चलिए, सो बाय बाय फॉर टुडे। ओके, बाय बाय बाय, चलिए बाय। Yeah, Maitreya, as per timetable, it should be science today, but your science teacher is not available today. That's why we took the mathematics. Okay. So your science lecture will be mostly on Thursday or on the next week. Okay. Yeah. Yeah. You can leave now.